lovely challams. Welcome. Swagatam to Jolly Hindi class. In the video la Pratmik August 2023 ஓட one of the important and expected sample paper தான் பார்க்க போறோம். எக்ஸாம்னா உடனே திக்குன்னு இருக்கா? Don't worry, நாங்க இருக்கோம் உங்களை கைட் பண்றதுக்கு. ठीक है? Now let's begin. Pratmik total 100 marks paper, 5 marks for handwriting, that is neatness. ஓவர் ரைட்டிங் ஸ்கிரிப்ளிங் ஒர்க் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, ரொம்பவே நீட்டாக எழுதணும். அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் 5 மார்க்ஸ் நீட்னஸ்க்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங்க்கு கொடுப்பாங்க. டீக்கே சம்ஜா? குட். இப்போ நம்ம புக்கு பிராத்மிக் பாட்டிய புஸ்தகம் இருக்கு இல்லையா, அதோட भाग 1 बोधनी தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட்டும் செகண்ட் ரோமனும். फर्स्ट रोमन पारुंगा किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. आउट ऑफ 10 यू हैव टू राइट एनी 5. எது பெஸ்டா தெரியுதோ அதனால चूஸ் பண்ணி 5 आंसर्स எழுதிக்கோங்க. फर्स्ट वन पारुंगा यह क्या है? यह कलम है. हाथ में क्या है? हाथ में कलम है. गाय कहाँ है? गाय यहाँ है. आप कौन है? मैं गोपाल हूँ. सुधा देखो मेज पर क्या है? मेज पर अखबार है. पिताजी कहाँ जाते हैं? पिताजी बंगलुरु जाते हैं. कुत्ता क्या खाता है? कुत्ता भात खाता है. दिनेश कहाँ से कलम लाता है? दिनेश बाजार से कलम लाता है. शेखर का स्कूल कहाँ है? शेखर का स्कूल इंदिरा नगर में है. विजय क्या खाता है? विजय सेब खाता है. सीधा सेकेंड रोमन किन्हीं 4 को अक्षरों में लिखिए. इधर नंबर नेम्स एनी 4 you have to write out of 8. 15 15, 22 22, 28 28, 20 20, 33 33, 19 19, 14 14, 17 17. இப்போ रोमन 3 பாருங்க. இது வந்து भाग 2 पोएट्री सेक्शन. ठीक है? किन्हीं 2 पद्यों का भावार्थ प्रांतीय भाषा में लिखिए. 2 पद्यों ना एनी 2 எழுதணும் out of 5. ஓகேயா? பிராந்திய பாஷா ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னதுன்னா, பிராந்திய பாஷா ஐதர் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் இன் தமிழ் நீங்க எழுதணும். இப்போ ரோமன் 3, ரோமன் 5 அண்ட் ரோமன் 16 இது மூணுமே பிராந்திய பாஷால தான் எழுத சொல்லியிருப்பாங்க. நீங்க எனி ஒன் லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணி எழுதணும், ஐதர் இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ். रोमन 3 தமிழ்ல எழுதிட்டு रोमन 5 இங்கிலீஷ்ல எழுதிட்டு அப்படி மாத்தி எழுதாதீங்க. ठीक है? நல்ல மனசுல வச்சுக்கோங்க. now see, बलवान बनो तुम भारत माँ की शान बनो. तुम वीर बनो बलवान बनो. तुम बलशाली हनुमान बनो. फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट எழுதணும். these lines are taken from the poem बलवान बनो. the word बलवान बनो stands for become strong. substance எழுதிக்கோங்க. the poet tells you become strong. You become the pride and majesty of Mother India. You should become brave and strong. You should become strong like mighty Hanuman. Is it clear? நீங்க இத தமிழ்லயும் choose. Now see the second one. दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना. पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना. Context. These lines are taken from the poem Seekho. The word Seekho stands for learn. The poet tells us to learn good qualities from the nature. Now substance. The poet says learn from the lamp to remove darkness. Learn from the earth to think of the welfare of the living being and serve them truly. Third one. फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना. तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना. Context. These lines are taken from the poem Seekho. The word Seekho stands for learn. The poet tells us to learn good qualities from the nature. Substance. The poet says learn to laugh from flowers always. Learn to sing from bees. Learn to be humble from the bowing branches of trees. Now the fourth one. जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते. जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते. Context. These lines are taken from the poem Kalpana. The word Kalpana stands for imagination. Substance. In this poem, the poet imagines that how nice it would be if trees could move. Wherever there is hot sun, immediately we take rest under the tree. If there is rain anywhere, we can take shelter under the tree. Okay, the fifth one. माँ बाप भाई बहन
संग अंग बढ़े, हंसना रोना सीखा, खेलना बोलना सीखा. Context: these lines are taken from the poem Ghar Apna. The word Ghar Apna stands for our own home. Substance: in these lines, the poet says, we grew with our mother, father, brothers and sisters. At home, we learned to laugh and cry. We learned to play and speak. That's all. Now see the fourth Roman. किसी एक दोहे का कंठस्थ रूप ज्यों का त्यों लिखिए. Any one doha you have to write as it is. Okay, without spelling mistake you have to write any one out of 3. 4 marks. Marks பக்கத்துல கொடுத்திருப்பாங்க. மார்க்ஸும் பார்த்துக்கோங்க, செக் பண்ணிக்கோங்க. See the first one. साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, तोता दे उड़ाए. सेकेंड वन. तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिय ही न पान, कही रही पर काज हित, संपत्ति संची सुजान. जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान. क्लियर. नेक्स्ट 5th ரோமன்ல இருந்து 13th ரோமன் வரைக்கும் भाग 3, that is prose sectionல இருந்து தான் क्वेश्चन आंसर्स கேட்டிருப்பாங்க. ठीक है. 5th रोमनல பாருங்க. किन्हीं 3 का अर्थ प्रांतीय भाषा में लिखिए. 3 meanings out of 8. Okay, you have to write in English or Tamil. ठीक है. फर्स्ट वन பாருங்க. अनाज ग्रेन, जरूरत नेसेसिटी, हड्डी बोन, कमजोर वीक, शरीर बॉडी, फुलवारी अ फ्लावर गार्डन, आवाज साउंड, रखवाली करना टू टेक केयर. सी द 6th रोमन. किन्हीं 3 के विलोम शब्द लिखिए. ऑपोजिट्स எழுதணும். out of 8 you have to write any 3. எது நல்லா தெரியுதோ அதை சூஸ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. देना, लेना, बहुत, कम, टेढ़ा, सीधा, छोटी, बड़ी, दिन, रात, आगे, पीछे, अच्छा, बुरा, कीमती, सस्ता. 7th रोमन. किन्हीं 4 वाक्य को सही या गलत लिखिए. ट्रू और फॉल्स எழுதணும். एनी 4 out of 5. फर्स्ट वन. किसान खेत जोतते हैं, सही. जुलाहे खरगों पर कपड़ा बुनते हैं, सही. लोहार लोहे के सामान बनाते हैं, सही. कन्याकुमारी भारत के उत्तरी छोर पर है, गलत. कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद का स्मारक भवन है, सही. 8th रोमन. किन्हीं 4 के कोष्टक से सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए. एनी 4 out of 5. चूज फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट. बिल्ली चूहे को पकड़ता है. छात्र शाम के 4 बजे तक पढ़ते हैं. उसके बाद 1 घंटे की छुट्टी होती है. घोड़ा बड़ा निडर होता है. कुत्ता वफादार जानवर है. नाउ द 9th रोमन. किन्हीं 4 वाक्यों को जोड़िए. मैच द फॉलोइंग. एनी 4 out of 5. स्कूल के आगे फुलवारी है. पढ़ाई 10 बजे शुरू होती है. अध्यापक छात्रों को प्यार करते हैं. शाम को छात्र मैदान में खेलते हैं. शाम के 4 बजे तक पढ़ते हैं. 10th रोमन. किन्हीं 4 की खाली जगह भरिए. फिलिंग द ब्लैंक्स. out of 5 you have to write any 4. सस्ते दाम में स्कूल के बच्चों के लिए कागज, नोटबुक और पुस्तकें मिलती हैं. हम पहले किराने की दुकानें देखेंगी. बाजार यहाँ से कितनी दूर है? चावल की दुकानें अलग हैं. सन 1914 में महात्मा गांधी भारत लौट आए. 11th रोमन. किन्हीं 4 शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए. मेक सेंटेंस. एनी 4 out of 8. होशियार राम होशियार लड़का है. बर्तन कुम्हार बर्तन बनाते हैं. जानवर कुत्ता एक पालतू जानवर है.
अलग अलग कक्षा में लड़के और लड़कियां अलग अलग बैठते हैं। कतार, अस्पताल में लंबी कतार है। लड़ाई करने से किसी को कोई लाभ नहीं है। आंदोलन, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन किए। पुत्र, रोशन रमेश का पुत्र है। 12th रोमन, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। आंसर द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंस। एनी 4 यू हैव टू राइट आउट ऑफ 8। किसान कहाँ रहते हैं? किसान गांव में रहते हैं। जुलाहा क्या बुनते हैं? जुलाहा कपड़ा बुनते हैं। स्कूल की पढ़ाई कितने बजे शुरू होती है? स्कूल की पढ़ाई 10 बजे शुरू होती है। छात्र मैदान में कब खेलते हैं? छात्र मैदान में शाम को खेलते हैं। कैलोरी किसे कहते हैं? आहार शक्ति को कैलोरी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण विटामिन बी है। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर किसका मंदिर है? कन्याकुमारी के समुद्र तट पर देवी कन्याकुमारी का मंदिर है। स्कूल के पीछे क्या है? स्कूल के पीछे एक बड़ा मैदान है। 13th रोमन, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 3-3 वाक्य में लिखिए। आंसर द फॉलोइंग इन 3 सेंटेंस। एनी 2 यू हैव टू राइट आउट ऑफ 4। सी द फर्स्ट वन। गाय के बारे में 3 वाक्य लिखिए। गाय बड़ी सीधी सादी होती है। वह हमको दूध देती है। गाय का दूध मीठा और पुष्टिकर। सी द सेकेंड क्वेश्चन। गांधी जी के माँ बाप और पुत्रों के नाम लिखिए। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माँ का नाम पुतलीबाई है। उनके 4 पुत्रों का नाम हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी हैं। 3rd वन। नए बाजार में कहाँ कौन कौन सा दुकानें हैं? नए बाजार में किराने की दुकानें, चावल की दुकानें हैं। सामने की कतार में सब्जी की दुकानें हैं। पीछे की कतार में साबुन कपड़े की दुकानें भी हैं। 4th वन। कपड़े की दुकानों में क्या क्या चीजें मिलती है? कपड़े की दुकानों में कई तरह की सलवार कमीज, पतलून के कपड़े और कई प्रकार की साड़ियां मिलती हैं। नाउ द 14th रोमन इज भाग 4। भाग 4 स्टोरी, कहानी। किसी एक कहानी का सारांश लिखिए। आउट ऑफ 3 यू हैव टू राइट एनी 1 स्टोरी। ठीक है। कवि और कंजूस, அது வந்து நீங்க உங்களோட புக்ல பேஜ் நம்பர் 97லயே இருக்கு। दूध में पानी 99 पेज नंबर, सौदागर और बालू 102 पेज नंबर। ஓகே, இந்த 3 ஸ்டோரியும் படிச்சீங்கன்னா எனி 1 கண்டிப்பா வந்துரும்। ஸோ லேர்ன் இட் வெல்। ஓகேயா? இப்போ இந்த कहानी का सारांश எழுதுறதுக்கு இடம் பத்தலைன்னா you can write in separate paper। ஓகேயா? Now 15th Roman, that is भाग 5 ग्रामर सेक्शन। निम्न प्रश्नों में किन्हीं 3 का उत्तर लिखिए। आउट ऑफ 5 you have to write any 3। चाह का उपयोग करके खाली जगह भरिए। चाह வச்சு சென்டென்ஸ் மாத்த சொல்லிருக்காங்க। वह आपके साथ हॉकी खेल, सो அது மாறும்। எப்படி மாறி இருக்கு? खेलना चाहता है। ठीक है। இப்போ नेक्स्ट कर का उपयोग करके निम्न वाक्य को जोड़िए। कर வச்சு 2 सेंटेंस ஜாயின் பண்ண சொல்லிருக்காங்க। आपकी बात हमने सुनी, हम बहुत खुश हुए। आपकी बात सुनकर हम बहुत खुश हुए। नेक्स्ट सक का प्रयोग करके निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सक வச்சு இந்த क्वेश्चनோட आंसर எழுத சொல்லிருக்காங்க। क्या आप हिंदी में गिन सकते हैं? नहीं, मैं हिंदी में गिन नहीं सकता। नेक्स्ट चुक का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए। चुक யூஸ் பண்ணி அந்த சென்டென்ஸை திரும்ப எழுத சொல்லியிருக்காங்க। ரைட் अगेन। हमने यह चित्र कल देखा। हम
यह चित्र कल देख चुके। फिफ्थ वन பாருங்க चाहिए का प्रयोग करके निम्न वाक्य में खाली जगह भरिए। இப்போ चाहिए வேர்டு வந்துச்சுன்னா அந்த பிராக்கெட்ல கொடுத்திருக்க மை வந்து எப்படி மாறும்னு சொல்லியிருக்காங்க। डैश यह काम करना चाहिए, இந்த மை வந்து मुझकोன்னு வரணும்। मुझको यह काम करना चाहिए। ठीक है, समझा? गुड। இப்போ 16th 17th ரோமன் வந்து ट्रांसलेशन दैट इज फ्रॉम भाग 6। 16th रोमन பார்க்கலாம்। किन्हीं 5 वाक्यों का अनुवाद प्रांतीय भाषा में कीजिए। You have to write any 5 out of 8 either in English or in Tamil। तुम किताब लाओ, you bring the book। यह काम करो, do this work। वेलू घर जाता है, वेलू goes to the house। तुम क्या कर रहे हो, what are you doing। लड़की गा रही है, the girl is singing। ललिता आज यहाँ आएगी, ललिता will come here today। मैंने खाया, I ate। वह खा चुका, he finished eating। Now 17th रोमन that is the last question। किन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद हिंदी में कीजिए। हिंदी ले ट्रांसलेट पढ़नो। You have to write any 4 out of 8। Bring a pen, कलम लाओ। We buy fruits, हम फल खरीदते हैं। The horse runs fast, घोड़ा तेज दौड़ता है। The servant is going to the market, नौकर बाजार जा रहा है। गोपाल brought a book, गोपाल एक पुस्तक लाया। We shall work in the garden, हम बगीचे में काम करेंगे। That child wants a ball, वह बच्चा गेंद चाहता है। Little milk is required for the child, बच्चे को थोड़ा दूध चाहिए। Now is it clear? Okay. நான் இப்போ இந்த எல்லா ஆன்சர்ஸுமே கலராக இருக்குதுன்னு பார்க்காதீங்க। யூ ஹாவ் டு ரைட் இன் பென் தட் ஆல்சோ ப்ளூ கலர் ஒன்லி। நான் உங்களுக்கு நல்லா புரியணும்னு சொல்லிட்டு தான் கலராக டைப் பண்ணியிருக்கேன்। ठीक है, समझा? ओके, सी यू ऑल इन नेक्स्ट। बाय टू ऑल माय कुटी कुटी लवली चलम्स। टेक केयर।